Hello class, Assalamualaikum Mahodaya. Again, you will be in a very prosperous condition, and I hope that you must enjoy our previous two videos. So class, today I have brought an amusing story for you, which is based upon the heroine, and the villain. You will face all such these sorts of the characters in this story. So today's poem is based upon story class, and I think that you will be very amused while watching this story that is based upon the myth, and also this story is to be known as a tragic story. Class, one thing I will say to you that if you feel any sort of the problem, then you may ask me, or if you are eligible to comprehend our videos in such a manner that you may also suggest me. You may also say me, you may also advise me to change the way, because if you are not getting my videos, if you are not getting the material from my videos, then I may alter the way of my occurring or defining. So all these things I will occur before you and for the sake of you. So class, today we will move towards the story that is based upon the myth as well as this is a tragic story. So class, this is the third poem, and as usually we will define the introduction of the poet. After that we will describe the explanation with reference to context, and last I will also tell you the theme or any logic or any sort of the proper thing I will explain before you. So class, let's move towards this story that's based upon the myth and also to be known as a tragic story. So let's move towards this story class. So class, the John Milton was born in 1608. ये 1608 में पैदा हुए थे. Here is another slide for you that he was a historian, poet and the journalist. ये historian भी थे, poet भी थे और class journalist भी थे और बहुत ही माने हुए ये शायर भी थे. So class, let's move further. He wrote the first poem at the age of the 21 years. Class, इसने पहला अपना poem 21 साल में लिखा था. He got blind in the 1652 और ये 1652 में बिल्कुल अंधे हो चुके थे. This poem, The Samson Agonist, was published in 1671. क्लास, ये जो सैमसन एगोनिस्ट पोएम है ये पब्लिश हुआ था 1671 में, जब ये बिल्कुल अंधे हो चुके थे. यानी क्लास, ये पोएम इसके अंधे होने के बाद पब्लिश हुई थी. He himself was blind when he wrote the poem. Samson Agonist used to write his poem by her daughter. क्लास, इसने ये जब पोएम लिखी थी इसके बाद ये बिल्कुल अंधे हो चुके थे और इसने ये अपना पोएम जो था अपनी बेटी से कंपोज करवाई थी. क्लास, सो चलते हैं अगली स्लाइड पे. सो क्लास, मिल्टन इज फेमस फॉर हिज पोएम द पैराडाइज लास्ट. क्लास, ये अपनी फील्ड में बहुत ही मशहूर पोएम की वजह से जाने जाते हैं जिसका नाम है द पैराडाइज लास्ट. क्लास, इस पैराडाइज लास्ट में द जॉन मिल्टन टेल्स अस दैट हाउ द आदम एंड ईव आर एक्सपायर्ड फ्रॉम द पैराडाइज. क्लास, ये हमें बताता है कि आदम और ईव को जन्नत में से किस तरह से निकाला गया था या किस वजह से निकाला गया था. क्लास, फर्दरमोर ही टेल्स अस अबाउट द स्टोरी ऑफ द शैतान इन द पैराडाइज लास्ट. और क्लास, ये पैराडाइज लास्ट पोएम भी इसने 1671 में लिखी थी जब ये बिल्कुल अंधे हो चुके थे. और क्लास, इसके बाद इसने पोएम लिखी थी द पैराडाइज रीगेन्ड. सो क्लास, हम चलते हैं आगे. द हाउएवर द मिल्टन्स पोएम्स लाइन फ्रॉम द सैमसन एगोनिस्ट इज अ ट्रेजिक पोएम. क्लास, हम ट्रेजिक पोएम उसे बोलते हैं यानी ऐसे कैरेक्टर जो कि अनबिलीवेबल हों, इनक्रेडिबल हों. ट्रेजिक पोएम हम उसे बोलते हैं. फॉर एग्जांपल क्लास, आपने मूवीज़ देखी होगी, जैसे कि आपने बैटमैन मूवी देखी है. अब ये मूवी जो है ये ट्रेजिक मूवी है और इसमें जो कैरेक्टर है वो भी ट्रेजिक कैरेक्टर है, यानी एक अजीब कैरेक्टर, इनक्रेडिबल कैरेक्टर जिससे देख के हमें यकीन ना हो. तो क्लास, हम उसे बोलते हैं ट्रेजिक पोएम. क्लास, ये सैमसन एगोनिस्ट एक ट्रेजिक पोएम है जो कि बेस्ड अपॉन मिथ पे है. तो क्लास, हम मिथ उसे बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल सुनी सुनाई हुई कहानियाँ जैसे कि ये कंफर्म ना हो, इट इज़ नॉट कंफर्म्ड आइदर दिस स्टोरी इज़ ट्रू आर नॉट. सो क्लास, ये पोएम एक ट्रेजिक पोएम है जो कि बेस्ड है मिथ पे, यानी हम नहीं जानते कि ये स्टोरी सच्ची है या झूठी है. वी डोंट नो. लेट्स मूव अनदर स्लाइड. देयर इज अ कोटेशन ऑफ जॉन मिल्टन which is described in such a way that death is a key, golden key that opens the place of eternity. क्लास, eternity का मतलब होता है हमेशा रहने वाली जगह. क्लास, जॉन मिल्टन कहते हैं अपने इस कोटेशन में, कहते हैं कि ये जो मौत है ये एक सुनहरी चाबी है जो कि हमेशा रहने वाली जगह को खोल देती है, यानी इट ओपन्स द लॉक ऑफ द पैराडाइज वेयर यू विल लिव फॉर एवर. सो क्लास, एटर्निटी यानी हमेशा रहने वाली जगह यानी आखिरत. So class, let's move the first and foremost and the brave character of this poem, of this story. Class, is a man of immense strength. क्लास, सैमसन एगोनिस्ट
इसको बहुत बड़ी ताकत होती है, ये एक बहुत बड़े योद्धा होते हैं। ये बिलोंग्स फ्रॉम द इसराइल ट्राइब और ये इसराइल कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं क्लास। एंड इज कैप्चर्ड बाय फ़लस्तीन इन द गाज़ा प्रिजन, और इसे फ़लस्तीन के कबीले के लोग गाज़ा प्रिजन में कैद करते हैं क्लास यहाँ पे हम आपको इसके बारे में एक क्वालिटी बताएं, एक ट्रेजिक क्वालिटी बताएं। इसकी ट्रेजिक क्वालिटी ये है कि क्लास इसकी पूरी की पूरी जो ताकत होती है वो इसके बालों में होती है क्लास। ये इसराइल कबीले से होता है जो कि अपने इसराइल कबीले के लोगों की खातिर, उनकी जान माल और कीमत की खातिर फ़लस्तीन के लोगों से लड़ते हैं। और क्लास एक और बात हम आपको बताएं कि फ़लस्तीन के लोगों में कोई ऐसा योद्धा नहीं होता जो कि इस योद्धा को हरा सके, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल होता है और ये इससे बहुत ही यानी एक ट्रेजिक क्वालिटी होती है, इससे बहुत इनक्रेडिबल ताकत होती है, जैसे कि हमें पता है कि वो ताकत इसके बालों में होती है, ये कभी नहीं हार सकता। सो क्लास चलते हैं हम अगले करैक्टर पे जिसका नाम है दलीला क्लास। ये दलीला एक ऐसी लड़की होती है जो कि फ़लस्तीन कबीले से होती है। अब द स्काउंड्रल वाइफ ऑफ द सैमसन, ये एक स्काउंड्रल हम उसे बोलते हैं जैसे मकार। ये सैमसन की एक मकार वाइफ होती है। हु बिट्रेड सैमसन बाय टेलिंग द सीक्रेट टू एनिमीज़, जो कि उनके दुश्मनों को, सैमसन के दुश्मनों को सैमसन का राज बता देती हैं, जिससे कि वही उसकी जो पूरी की पूरी ताकत है उसके बालों में छुपी हुई होती है। तो उसके ये अपने हस्बैंड को खुद कैद करवाती है और उसके एनिमीज उसके बाल काट देते हैं। उसके बाद सैमसन पूरा का पूरा कमज़ोर हो जाता है। एज नो बॉडी किल्स द सैमसन एगोनिस्ट बिकॉज ही इज़ अ मैजिकल पावर इन हिज हेयर, जैसे कि हमें पता है कि इसे कोई भी बंदा हरा नहीं सकता है, क्योंकि इसकी पूरी की पूरी ताकत जो होती है वो इसके बालों में होती है क्लास। यहाँ पे एक हमारा और भी कैरेक्टर है जो कि मनोआ के नाम से जाना जाता है। मनोआ सैमसन का क्लास फादर है। ये जो दलीला है, ये दलीला फ़लस्तीन की एक लड़की होती है जो कि फ़लस्तीन के लोग इसे भेजते हैं कि भाई आप जाओ और सैमसन को अपने प्यार में फंसाओ और उसे अपने प्यार में अंधा कर दो और उसके बाद आप उसे धोखा दे दें ताकि हम सैमसन को कैद कर सकें। तो क्लास मनोआ जो कि सैमसन का फादर होता है वो इसे मना करता है कि आप दलीला से शादी ना करो, पर सैमसन मनोआ यानी अपने फादर की कोई बात नहीं सुनता है और वो दलीला के प्यार में इतना अंधा हो चुका होता है कि वो दलीला से फाइनली शादी कर लेता है और दलीला को अपने पूरे राज बता देता है। अब जैसे कि वाइफ है तो वाइफ को बंदा अपने राज बता देता है, तो दलीला कुछ ना कुछ करके उसे अपना राज उगलवा लेती है और वो सैमसन अपना पूरा का पूरा राज दलीला को बता देता है और दलीला फाइनली इसे धोखा देती है और आखिरकार ये सैमसन फ़लस्तीन के लोगों से कैद किया जाता है। और क्लास सैमसन को ना सिर्फ यानी कैद किया जाता है बल्कि उसे अंधा भी किया जाता है, क्योंकि वो लोग फिर भी उससे इतना डरते हैं कि वो इसे अंधा कर देते हैं। हालांकि पूरी की पूरी ताकत उसकी बालों में होती है, फिर भी क्लास वो उसको अंधा कर देते हैं और गाज़ा प्रिजन में, जैसे कि हमने आपको बताया, कि वहाँ पे इसे कैद कर देते हैं। सो क्लास आगे चलते हैं। सैमसन इज ब्रॉट एट फंक्शन इन डेगन टेम्पल। सो क्लास हम पोइम में भी यही पढ़ेंगे कि सैमसन को एक टेम्पल में लाया जाता है जिसका नाम है डेगन टेम्पल। अब उसमें ये इसे क्यों लाया जाता है? टू एंटरटेन द काउंट्स एंड लार्ड्स ऑफ द फ़िलिस्तीन्स, क्योंकि वहाँ उस डेगन में बहुत ही बड़े अमीर लोग और काउंट्स और वडेरे और लार्ड्स बंदे फ़िलिस्तीन के आते हैं जो कि खुशी मनाने आते हैं कि भाई हमने सैमसन को कैद कर लिया है। तो क्लास एक बात आप याद रखें कि ये भले ही अंधा हो चुका है, कमज़ोर हो चुका है, पर इसमें वो ही ताकत, वही जुनून रहता है। बस एक बात ये है कि ये बंधा हुआ होता है और इसके बाल कट चुके होते हैं और ये अंधा हो चुका होता है, पर इसमें ताकत रहती है, क्योंकि ये हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा है कि ही इज़ अ मैन ऑफ इमेंस स्ट्रेंथ, इससे बहुत ही बड़ी ताकत होती है और ये बहुत ही बड़ा योद्धा होता है। तो क्लास इसे डेगन टेम्पल में इसलिए लाया जाता है क्योंकि ये अपने ताकत के मुजाहरे दिखा सके, लोगों को, लार्ड्स को मुजाहरे दिखा सके। तो इसे राज़ी करके क्लास डेगन टेम्पल में लाया जाता है और अब वहाँ पे ये क्या करता है, लोगों को एंटरटेन करता है, अपनी ताकत के मुजाहरे दिखाता है, अपना मैजिकल पावर दिखाता है, जो पावर इसे थोड़ा सा बचा हुआ होता है। क्लास हम चलते हैं अपने पोइम की तरफ जिसका नाम है द लाइन्स फ्राम द सैमसन एगोनिस्ट, जो कि जॉन मिल्टन ने लिखी है। अब ये लाइन सैमसन एगोनिस्ट से ली गई हैं क्योंकि सैमसन एगोनिस्ट हमें पता है कि वो इस पोइम के हीरो हैं। तो क्लास आइए चलते हैं पोइम पे और पढ़ते हैं इनकी लाइन्स। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है। दीज लाइन्स फ्राम द मिल्टन्स ग्रेट पोएटिक ड्रामा डिस्क्राइब द डेथ ऑफ हीरो सैमसन। ये जो बहुत अजीम लाइनें हैं जो कि सैमसन एगोनिस्ट के पोइम में से ली गई हैं, ये अपने हीरो की मौत को बयान करती हैं। ही वॉज अ मैन ऑफ इमेंस स्ट्रेंथ, ये बहुत ही बड़े ताकत का मालिक था। बट हैड बीन टेकन कैप्टिव, पर इससे बंदी बनाया गया था। थ्रू द ट्रेचरी ऑफ हिज वाइफ, क्योंकि इसको इसकी वाइफ ने धोखा दिया था। बाय द फ़लस्तीन, ये फ़लस्तीन के लोगों से कैद किए जा चुके थे। द डेडली एनिमीज ऑफ हिज रेस, जो कि उस टाइम पे इसके बहुत ही बड़े खूनखार दुश्मन थे।
एज दिस पैसेज डिस्क्राइब्स, जैसे कि ये पैसेज ये बयान करता है कि ही सेव्ड हिज पीपल, इसने अपने लोगों को बचाया, बाई यूजिंग हिज स्ट्रेंथ, अपनी ताकत का इस्तेमाल करके, टू किल द फलस्तीन लीडर्स, और इसने फ़लस्तीन के लीडर्स को मार दिया, बट पर इन ब्रिंगिंग डाउन द रूफ ऑफ अ ग्रेट टेम्पल, जैसे कि हमें पता है कि उसे बहुत ही बड़े टेम्पल में लाया गया था जिसका नाम था डेगन, तो वो उसकी डेगन की पूरी छत को उन लोगों के ऊपर गिरा देता है जो कि वहाँ पे बैठे हुए होते हैं। क्लास असेंबल्ड का मतलब होता है इकट्ठे बैठे हुए। क्लास ये किस तरह से इस रूफ को गिराता है, क्योंकि उस रूफ के नीचे 2 पिलर होते हैं और वो 2 पिलर जो होते हैं वही मेन सपोर्ट होते हैं उसकी रूफ के, यानी पूरी की पूरी रूफ का जो वो वज़न होता है वो उन दोनों पिलर्स के ऊपर होता है। और सैमसन एगोनिस्ट को क्लास उन दोनों पिलर्स के बीच में बांधा जा चुका होता है, जो कि हम आगे पोएम में पढ़ेंगे। तो वो महसूस करता है, देखता है कि भाई ये पूरी की पूरी छत का जो वज़न है इन दोनों पिलर्स पे और मुझे इन दोनों पिलर्स के बीच में बांधा गया है, तो वो उन दोनों पिलर्स को अपनी ताकत से खींचता है, हिलाता है, डुलाता है और उन दोनों पिलर्स को नीचे गिराता है। पूरी की पूरी रूफ जो है वो उन बंदों के ऊपर गिर जाती है जो कि वहाँ पे उनके लीडर्स वहाँ पे बैठे हुए होते हैं। तो एट अ टाइम ही सेक्रीफाइस्ड हिज ओन लाइफ एट द सेम टाइम, और उसी वक्त ये अपनी ज़िंदगी भी लोगों के लिए कुर्बान कर देता है, यानी ये अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर देता है इसराइल लोगों के लिए, और वो इसराइल के लोगों को फ़लस्तीन के लीडर से बचाते हैं। तो क्लास चलते हैं हम अपने पोइम की तरफ कि शायर इन लाइनों में क्या कहता है। ये कहता है कि ही पेशेंट बट अनडांटेड वेयर दे लेड हिम, ये बेखौफ था और सब्र, इसे बहुत बड़ा सब्र भी था जहाँ पे इसे लाया गया। अनडांटेड का मतलब होता है बेखौफ। क्लास केम टू द प्लेस एंड वाट वाज सेड बिफोर हिम, इसको इस जगह पे लाया गया और इसके सामने जो भी चीज़ें रखी गई, विच विदाउट हेल्प ऑफ आई माइट बी असेड, भले आंखों के बगैर भी उन चीज़ों को महसूस किया जा सकता था। तो सैमसन एगोनिस्ट ने उन चीज़ों को महसूस किया। क्लास असेड का मतलब होता है महसूस करना या परखना या जांचना। तो ही पुल ड्रा आर ब्रीक स्टिल परफॉर्म्ड, क्लास इसे जो कुछ भी कहा गया, फॉर एग्जाम्पल इसे कहा गया कि भाई ये चीज़ तोड़ो तो इसने तोड़ दी, अगर ऐसी चीज़ इससे कही गई कि भाई इसको खींचो तो उसने वो खींची, ऐसी चीज़ें जो उसे तोड़ने के लिए कही गई तो उसने वो चीज़ें क्लास तोड़ दी। तो ही का मतलब होता है क्लास एक बहुत ही बड़ी लंबी सांस लेना। तो एक बहुत ही बड़ी लंबी सांस लेने के बाद जो जो चीज़ें ऐसे कही गई वो वाली चीज़ें इसने परफॉर्म की। क्लास हमें पता है कि इसे डेगन टेम्पल में क्यों लाया गया था, क्योंकि इसे अपना कर्तव्य दिखाना था। तो क्लास ऑल विथ इनक्रेडिबल स्टूपेंडस फोर्स, क्लास स्टूपेंडस फोर्स का मतलब होता है नाकाबिले यकीन ताकत। तो इसने ये सारी चीज़ें जो की ना वो अपनी नाकाबिले यकीन ताकत से की। ठीक है क्लास, तो चलते हैं हम अगली लाइन्स पे। सो क्लास हम चलते हैं अपने अगली लाइन्स पे। नन डेयरिंग टू अपियर द एंटागोनिस्ट, कोई ऐसा बंदा नहीं था जो कि इसका मुकाबला कर सके या इसकी मुखालफत कर सके। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है क्लास मुकाबला करना या मुखालफत करना। एट लेंथ ऑफ इंटरमिशन से द लेड हिम, उन लोगों ने इनको थोड़ी सी ब्रेक दी। इंटरमिशन का मतलब होता है थोड़ी सी ब्रेक दी। बिटवीन द पिलर्स ही हिज गाइड रिक्वेस्टेड, अब इसको जो ब्रेक दी गई थी कि हमें पता है कि ये 2 पिलर्स के बीच में बंधा हुआ था, तो ही हिज गाइड रिक्वेस्टेड, तो इसने अपने गाइड से रिक्वेस्ट की, वो वाला बंदा जो कि इससे यानी कहता था कि भैया अब ये करो वो करो, तो उस बंदे से यानी अपने गाइड से इसने अर्ज़ किया कि फार सो फ्राम सच इज़ नियर स्टूड वी हार्ड। क्लास ये जो ब्रैकेट में लाइन बंद है इसका मतलब ये है कि अब ये वाली पूरी लाइंस जो हैं ये पोएम में ये एक बंदा बता रहा है और वो बंदा जो है क्राउड का बंदा है वो दूर बैठा हुआ है। तो क्लास वो कह रहा है कि इसने अपने गाइड से यानी सैमसन एगोनिस्ट ने अपने गाइड से कानों में कुछ कहा पर वो हमने नहीं सुना क्योंकि हम बहुत ही दूर थे। एज ओवर टायर्ड टू लेट हिम लीन अ वाइल, शायद अब ये बंदा वो कह रहा है कि शायद वो बहुत ही थक गया था, यानी सैमसन एगोनिस्ट बहुत ही थक गए थे और उससे कुछ देर के लिए आराम करना था। लेट हिम लीन अ वाइल, उसे थोड़ी सी मोहलत दी जाए। सो क्लास चलते हैं हम अगली लाइन पे। विथ बोथ हिज आर्म्स ऑन दोज टू मेसी पिलर्स, उसके दोनों बाजू बहुत ही बड़े मोटे पिलर्स के साथ बांध दिए। मेसी यानी बहुत ही बड़े या मोटे। डेट टू द आर्चड रूफ गेव मेन सपोर्ट, उन पिलर से इसे बांधा गया था जिसके ऊपर पूरी की पूरी छत का वजन था। ही unsuspicious laid him which when Samson felt in his arms with head and while inclined, इसने क्लास महसूस किया जब इससे ये पता चल गया कि इसके बाजू उन पिलर्स के साथ बंधे हुए हैं जिसके ऊपर पूरी छत का वजन है। विथ हेड ही वाइल इंक्लाइंड, इसने अपना सर हिलाया, इधर उधर हिलाया, यानी दाएं तरफ देखना और बाएं तरफ देखना, इंक्लाइंड यानी
ऐसे ऐसे सर हिलाना, दाएं और बाएं तरफ सर हिलाना। एंड आईज फास्ट फिक्स्ड, और अपनी आंखें एक तरफ जमा दी। ही स्टूड, ये खड़ा हो गया। एज वन हु प्रेड, जैसे एक बंदा नमाज पढ़ता है इस तरह से ये खड़ा हो गया। आर सम ग्रेट मैटर इन हिज माइंड रिवॉल्व्ड, क्लास इसके ऐसा लग रहा था कि इस तरह से खड़ा हो गया कि इसके दिमाग में कोई बहुत ही बड़ी बात चल रही हो, तो ये इस वजह से खड़ा हो गया। क्लास आगे वाले लाइंस में ये कहा गया है कि एट लास्ट, आखिरकार, विथ हेड डायरेक्ट दस क्राइड अलाउड, इसने अपना सर ऊपर किया यानी ऐसे सीधा किया और एक बहुत ही बड़ी चीख मारी कि हिथेरटो का क्लास मतलब होता है अब तक के लॉर्ड से हुक्मरानों ने वाट यूर कमांड्स इम्पोज्ड, जो भी हुक्म आपने किए मुझ पे लागू किए, आई हैव परफॉर्म्ड, मैंने वो किए। एज रीजन वाज ओबेइंग नॉट विदाउट वंडर आर डिलाइट बी हेल्ड, उसमें मेरी मर्जी थी या ना थी, फिर भी मैंने वो चीज़ें आपके लिए की और आपका हुक्म माना। नाउ, अब ऑफ माई ओन अकॉर्ड, अपनी मर्जी से, सच अदर ट्रायल में आपको एक और करतब दिखाना चाहता हूँ। तो क्लास चलते हैं अगली लाइन पे, क्या चीज़ें थी जो वो दिखाना चाहता था, कौन सा करतब वो दिखाना चाहता था। ये कहता है कि आई मीन टू शो यू ऑफ माई स्ट्रेंथ येट ग्रेटर, अब मैं आपको इससे भी ज़्यादा अपनी ताकत दिखाना चाहता हूँ। एज विथ अमेज शैल स्ट्राइक ऑल हु बी होल्ड, और आप लोग सब जो मुझे देख रहे हैं आप पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा और आप बहुत ही यानी हैरान हो जाएंगे। स्ट्राइक का मतलब होता है असर पड़ना, अमेज यानी हैरान होना, और बी होल्ड यानी देखना। दिस अटैड, ऐसा के स्ट्रेनिंग ऑल इज नर्व, जिसने अपनी सारी नसों को जकड़ लिया। ही बाउड, ये झुका। एज विंड द फोर्स ऑफ एज विद द फोर्स ऑफ विंड्स एंड वाटर स्पेंट व्हेन माउंटेन्स ट्रेम्बल, जैसे तेज़ हवाओं और तूफान और पानी आने के बाद बड़े बड़े माउंटेन्स हिल जाते हैं, इस तरह से इसने अपने आप को रेडी कर लिया। दोज हु मेसी पिलर्स विथ हॉरिबल कन्वर्जन टू एंड फ्रो, जिन बहुत ही बड़े पिलर्स के साथ ये बंधा हुआ था, उसने उन यानी खतरनाक पिलर्स को इधर उधर हिलाने की कोशिश की। टू एंड फ्रो, कन्वर्जन यानी हरकत, टू एंड फ्रो यानी आगे और पीछे। सो क्लास, लेट्स मूव टुवर्ड्स द फुल एंड फाइनल पैरा ऑफ द पोएम। इसमें शायर क्या कहता है, ही टग्ड, इसने उसको खींचा। ही शोक, इसने उनको हिलाया। टिल डाउन दे केम, तब तक हिलाया और डुलाया और तब तक खींचा जब तक वो नीचे ना गिरे। एंड ड्रू यानी गिरना। द वॉल रूफ आफ्टर देन विथ बस्ट ऑफ ठंडर, उसके बाद पूरी की पूरी जो छत थी वो यानी एक ढेर बन गई, मट्टी का ढेर बन गई। अपॉन द हीट्स ऑफ ऑल हु सेट बीनीथ, और उनके ऊपर गिर गई जो उसके नीचे बैठे हुए थे। अब उनके नीचे क्लास कौन कौन बैठे हुए थे नीचे, उनकी तफसील है कि लार्ड से बड़े बड़े जो बंदे थे, लीडर्स थे, लेडीज़ थी, कैप्टन्स थे, काउंसलर्स थे। क्लास काउंसलर का मतलब होता है सलाह देने वाले बंदे। आर प्रीस्ट और पादरी। देयर चॉइस नोबिलिटी एंड फ्लावर नॉट ओनली ऑफ दिस बट ईच फिलिस्तीन सिटी अराउंड, ये एक ऐसा वाक़या था जो कि ना सिर्फ और लोगों मतलब ना सिर्फ फ़लस्तीन के लोगों के लिए था पर उन लोगों के लिए भी था जो कि उस ड्रैगन टेम्पल के इर्द गिर्द बैठे थे। यानी ये बहुत ही बड़ा मिसाल था, ये बहुत ही बड़ा वाक़या था, ना सिर्फ फ़लस्तीन लोगों के लिए बल्कि और लोगों के लिए भी जो कि उसके इर्द गिर्द बैठे थे, यानी उस टेम्पल के अराउंड बैठे थे। तो कहता है कि मीट फ्राम ऑल पार्ट्स टू सोलेमनाइज दिस फीस्ट, और वो लोग जो इस तकरीब में शामिल हुए थे या जो इस तकरीब में शरीक हुए थे, सोलेमनाइज दिस फीस्ट यानी तकरीब में शामिल होना या शरीक होना, उन सब लोगों को इन चीज़ों का सामना करना पड़ा। सैमसन विथ दीज इन मिक्सड इनएविटेबली, और सैमसन खुद भी हमेशा हमेशा के लिए उस मिट्टी में मिल गया। पुल्ड डाउन द सेम डिस्ट्रक्शन ऑन हिमसेल्फ, और वो सेम तबाही और वही तबाही उसने अपने आप पे भी गिराई और ख़ुद भी अब हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। तो क्लास ये था हमारा पोएम जिसमें सैमसन एगोनिस्ट ने अपनी जान दे के, अपनी जान की सेक्रीफाइस दे के अपने इसराइल कबीले के लोगों को आज़ादी दिलाई और उनको यानी हमेशा हमेशा के लिए निजात दिलाई। तो क्लास ये था हमारा पोएम जो कि यहाँ पे कंप्लीट हो चुका। सो क्लास चलते हैं इसकी लैंग्वेज पे कि इसकी लैंग्वेज किस तरह से है। कि द लैंग्वेज ऑफ दिस पोएम इज़ रियली डिफ़िकल्ट, बहुत ही बड़ी मुश्किल है। द वर्ड्स यूज्ड आर वेरी डिफ़िकल्ट, और अल्फाज भी बहुत मुश्किल हैं। बट सर्विंग द पर्पस ऑफ द पोएट इन द बेस्ट मैनर, पर जिस तरह से ये शायर अपने जो थाट्स से हम तक पहुंचाना चाहता है तो उस थाट्स के लिए ऐसी वोकेबलरी होना ज़रूरी है। यानी ऐसी वोकेबलरी जो है वो
किसके लिए बेहतर है? पोइट के लिए बेहतर है, क्योंकि वो अपना मैसेज हम तक इन लफ्ज़ों के थ्रू सही तरीके से पहुंचा सकता था। क्लास चलते हैं थीम पे। इन दिस पोएम जॉन मिल्टन डिस्क्राइब द डेथ ऑफ सिम्पसन। सिम्पसन की मौत के बारे में बताता है। वो इमेंस स्ट्रेंथ, जिससे बहुत बड़ी ताकत है, एंड हेल्ड इन ब्लाइंडेड बाय हिज एनिमीज, और वो अपने दुश्मनों से अंधे भी हो चुके हैं। यूजिंग हिज स्ट्रेंथ ही पुल्ड द मेन पिलर्स फॉर द ग्रेट प्लेस। ये बहुत ही ऊंची जगह पे दोनों पिलर्स को और उनके ऊपर जो छत होती है वो गिरा देता है। ऑन अकाउंट ऑफ दिस रूफ फेल डाउन ऑन द हीट्स, इस वजह से वो उनके सरों के ऊपर गिर जाती है। किलिंग द ऑल दोज हु वर प्रेजेंट देयर एंड ही आल्सो किल्ड देयर, और ये खुद भी मर जाता है और वहाँ पे जो और बंदे होते हैं वो भी मर जाते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी छत उनके ऊपर गिर जाती है। तो क्लास ये था हमारे पोइम का छोटा सा थीम था। अब हम चलते हैं इसके कंक्लूजन पे। क्लास कंक्लूजन पे चलते हैं कि द जॉन मिल्टन हैज़ बीन वूड सक्सेसफुल इन इम्पार्टिंग हिज मैसेज। क्लास वूड का मतलब होता है बहुत ही बड़ा, और इम्पार्टिंग यानी मैसेज देना। तो क्लास इस जुमले की मीनिंग कुछ इस तरह से निकलेगी कि जॉन मिल्टन ने अपना मैसेज हम तक पहुंचाने में बहुत बड़े कामयाब रहे हैं। यानी किस तरह से ये हमें अपना मैसेज देना चाहता था, उसमें ये हम कामयाब रहा है और वो मैसेज हम समझ भी चुके हैं। आगे कहता है कि हिज मैसेज इज़ टू सेक्रीफाइस ओवर लाइफ टू सेव द नेशन। इसका मैसेज ये है कि एक बंदे ने अपनी कौम की खातिर अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। द ग्रेटनेस ऑफ मिल्टन इज शोइंग इन दिस पोएम। और ये कहता है कि जॉन मिल्टन कहता है कि इसमें जो हीरो है सिम्पसन एगोनिस्ट, उसकी जो ग्रेटनेस है यानी उसका जो बड़प्पन है वो इस पोएम में हमें साफ साफ नज़र आता है। यानी इसकी जो अजीम शख्सियत है, जो इसका अजीम कैरेक्टर है, वो हमें साफ साफ तरीके से इस पोएम में नज़र आ चुका है। तो क्लास ये था हमारा कंक्लूजन। यहाँ पे हमारा पोएम हुआ पूरा।